ஜன்சன் குலா 2007 2007 லாக்டவுன் வந்துச்சாங்க. எது அந்த கன்னு இப்போ ஹம்சாக்கு வந்து இது செம ப்ளஸ். ஏன்னா அவன் சொல்லிதான் அவன் சொல்லிதான்றதை விட இப்போ இவர் என்னதான் பண்ணி இந்த கேங்கை டிஸ்மேண்டில் பண்ணி இது பண்ணிட்டானா கூட ஆப்போசிஷன்ல ஒரு கேங் இருக்குமே, நீ இந்த கேங்கை தான் உள்ள இருந்து பழக முடியும். இப்போ ஆப்போசிஷன்ல கேங் இல்லைல்ல, சண்டை இது பண்ணி முடிஞ்சு ஒரே இதுல முடிஞ்சுல. நம்ம இது விளையாடி ரெட் ஹெட் கூட இல்லடா, அந்த மாஃபியா 3. இதான் அந்த மீமா, இது அந்த இது அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. இந்த விஜய் போட்டோலாம் வச்சு போட்டு தள்ளு முடியல வந்துட்டு இது பயங்கரமா. மியூசிக் செம்மையா போட்டுக்கிறாங்களா. யார் லிகாரி ரூல் போடுறாங்களோ, கராச்சி ரூல் போடுறாங்க. கராச்சி யார் ரூல் போடுறாங்களோ பாகிஸ்தான். டயலாக் அந்த கிரிக்கெட் பிளேயர் பிரசிடென்ட்டா இருந்தாரா பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தாரா? பிரைம் மினிஸ்டர். அதான் பாகிஸ்தான் வேர்ல்ட் கப் ஜெயிச்சிருக்காரு. அவரு கபில் தேவ் தான் சம ஃப்ரெண்ட்ஸ். 83லயே கபில் தேவ் போய் பேசுவாருடா, பேசுற மாதிரி ஒரு கேரக்டர். ஆமா ஒரு ரைட்டான இது எப்படி இருக்கீங்க அப்போலாம் சம ஃப்ரெண்ட்ஸா. அப்போ ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப் இப்போதான் கை கூட எத்தனை வாட்டி இந்த இது பார்த்துருக்கு. இந்த மீம் சாங் யூஸ் பண்ணுவாங்க, 30 year old ஆஃபீஸ் பாய் ப்ளஸ் 19 year old. அப்போ அந்த பாட்டு இங்கே வராதா? ஓ நீ அதான் நான் நினைச்சேன். அச்சு பார்க்குறாளே, நம்மளதான் பார்க்குறோம். அவர் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாரு. வந்து சுப்பிரமணியம் ஜெய் அவ்வளோ பேர் இருக்கும்போது என்ன விட பார்க்குறான்னா காரணம் இல்லாமையா? इलेक्शन अब्बू जीते, मेरी नुमाइश क्यों नहीं चाहिए? यार அந்த இவனோட பொண்ணு टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ. நீங்க பேசுறது इस्लामाबाद में डॉक्टरी पढ़ने के ख्वाब सजा रखे हैं ना, इनको अब तुम भूल ही அவங்க जाओ. எலெக்ஷன் ஜெயிச்சிருக்காரு. ரஹ்மான் கிட்ட எல்லாரும் ये तो तुम्हारे पापा ने इन गुंडे मवालियों के साथ वास्ता बना रखा है. जमील साहब आपको फोटो के लिए स्टेज पर बुला रहे हैं. चलो सिर्फ आपको. சிறப்பான ஆள் நீ. ஐபோன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐபோன் பழைய ஐபோன் 3G क्या हो रहा है भाई? ये जावेद खनानी, ये अल्ताफ खनानी, इलेक्शन में पीएपी के सारे खर्चे इन्होंने उठाए थे. பேஸ் அப்படியே வச்சிருக்காரு. एक दूसरे के काफी ஒரு மாதிரி கூலா தக் லைஃபா அந்த மாதிரி இருக்கு. हम बेफिक्र अपना काम जारी रख सकते हैं. पब्लिक की हरकत देखिए क्या. अरे आप लोग धूप में क्यों खड़े हैं? आपको पता धूप में ही खड़े खड़े बाबू डकैत को लगवा फुल ग्रीन स्क्रीन खोलो. आओ मेरे एसी टेंट में आओ. ग्रीन स्क्रीन जनाब मैं निकलता हूँ. पक्का? जी जी जी. चलो. सोच रहा हूँ मैं खुद की पार्टी को लेकर सियासत में कदम रखूं. क्या ख्याल है आपका? सियाना हो गया मेरा बच्चा. चला तुझे फेंटा पिलाऊं. सुनिए. हाँ सुनिए. जब देखो इस पे लगे रहते तुम. बदतमीज हो तो तुम क्या खड़ी हो? बैठो अंदर. क्या बात होती है? पहले मेरा फोन पकड़ो, फिर मेरा फोन फेंको. बकवास बंद करो अपनी तुम. वो किसका फोन मार लिया? बड़ा लाल लग रहा है. लाल नहीं महरूम है. मेरून नहीं. क्या? ये दोनों खनानी भाई महीने में कितने का धंधा करते होंगे? फॉरेक्स के धंधे में मेरा ख्याल है 1.5 से 2 करोड़ कमा लेते होंगे. फिर हवाले के धंधे में 2 से 2.5 करोड़ और 3 करोड़ के आसपास फर्जी स्टैम्प में कमा लेते होंगे.
तो मेरा ख्याल है 1 माह में ये लोग तकरीबन 50 से 60 करोड़ के ऊपर का कारोबार करेंगे। तो ये नकली नोट इंडिया पहुंचाते कैसे हैं? इसके लिए तो पूरा नेटवर्क चाहिए होता है। ये बड़ा आसान है। कराची से समंदर के रास्ते कतर, फिर कतर से प्लेन कार्गो में नेपाल। नेपाल में कोई एयरपोर्ट मिनिस्टर है जिसका बेटा ये सारा सामान बॉर्डर पार करके उत्तर प्रदेश के बक्कर खाने में भिजवा देता है। अब इन बक्कर खानों के सारे काम तो नकद में होते ஓ இன்னும் வந்திருக்கா हैं, नोटों में ये नकली नोट भी घुसा देते हैं। क्या क्या बोलना? மாட்டினது भाई मैं सोच रहा था कि सियासत में बड़ा कारनामा करना हो तो ऐसे दौलतमंदों से दोस्ती बनाई रखें। खून बहा के आप लियारी के तक ही पहुंच सकते हैं। चांद तक पहुंचना है तो अपना जलवा अमीरों में बिखेरना पड़ेगा। அவன் சொல்றது கரெக்டா? நாளைக்கு சூப்பரிண்டென்டென்ட் இல்ல ऐश कर। तो நம்ம புள்ளனா இருக்கு. இல்லட்டா இல்லையே. இன்னொரு கண்டினியூட்டி நோட் பண்ணியா, ம் இவர் அங்கே இன்ஃபில்ட்ரேட் பண்ணும்போது ம் நம்மளுக்கும் அவங்க கண்ட்ரிக்கும் வந்து நம்ம கண்ட்ரியோட டாப்பும் அவங்க கண்ட்ரியோட பாட்டமுக்கு கனெக்டிவிட்டி. ஆனால் இவர் வந்து டாப்லேருந்து வர்றாரு, ஆப்கானிஸ்தான் வர்றாரு. ஏன்னா சஸ்பிஷன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். ம் அதே மாதிரி அவங்க கவுண்டர் இதை வந்து நேபாள் ஃபேக் நோட்டை ரைட் சைடு அந்த சைடு போயிட்டு இப்படி வராங்க. ரைட் சைட்லேருந்து எடுத்து அம்மாடா அங்கேயுமா ஜேசன் மாமாவுக்கு டஃப் கொடுப்பான் உங்களுக்கு லுக்கில். எல்லா பக்கமும் உள்ள விட மாட்டேறாங்க. அதான் இந்த சைடு வந்து விட்டாங்க. ஆனால் அவள் வந்துடுவா வெளியே. போ என்ன விஷன் காமிச்சா என்ன பண்ணுறது? बर्गर बच्चों की अय्याश पार्टी चल रही है कासिम के लिए। रेड मरवा दो, लाखों कमाओगे, लश हो जाएगी। அவன் சொன்னால அவங்க ஆளு நம்ம பலோச்க்கு ரொம்ப இதுவானா எஃபி மட்டும் தான். அவங்க பர்கர் கிட்ஸ் தெரியல கோடு விட எதுக்குடா இவ்வளோ சேஸ் பண்ணுறாங்க? ஓ கடத்தின்னு போட்டு நிற்கிறாங்களா? மினிஸ்டர் பெரிய ஆளோட பொண்ணு. இந்த மாதிரிலாம் பண்ணா நம்ம ஊர்ல அத்தை சிக்னல்ல பிடிச்சிருவாங்க. கொஞ்சம் விட்டு தான் சரிக்கிட்டு இருப்பாரு. पेट्रोल का लिया। माफ कीजिए, लगता है तेल खत्म हो गया है। मेरा पूरा नाम हमजा अली मज़ारी है। मैं रहमान बलोच की गैंग में काम करता हूँ। उसके सारे काले धंधों में उसका साथ देता हूँ, मगर शायरी का भी शौक रखता हूँ। गरीब हूँ पर नाकामयाब नहीं, और कड़वाहट चाहिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। आपकी अमानत रह गई थी मेरे पास। நோட் பண்ணுங்கடா, நோட் பண்ணுங்கடா. இப்பதான் ட்ரை பண்றேன், நானும் இதை ட்ரை பண்றேன். வெற்றி அப்படியே டைப் பண்ணிக்கோ. கோட் வேர்டா? இவர் குத்துக்கிறாரு போல ஹம்சா. அதுதான் வாயில போட்டு
पाकिस्तान को रोला हमारे इधर 500,000 की இது வரைக்கும் ஒன்ட்டு प्लेस मिले कैसे? इट सीम्स मिनिस्ट्री से कोई हाई लेवल की ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व है सर हाल ही में नेपाल बांग्लादेश से फेक करेंसी यूपी में काफ़ी भारी तादाद में घुस रही है वी नो द कल्प्रिट सर बट यूपी वालों का माफिया नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि उन्हें पेनिट्रेट करना मुश्किल हो रहा है हमने कराची माफिया इन्फिल्ट्रेट कर இல்லை இருந்தால் தான் புது நோட்டு விட்டாங்களா माफिया इन्फिल्ट्रेट नहीं हो रहा அப்படின்னு நம்மள மைக்கிறதுக்கு 2 घंटे में கராச்சி மாஃபியாக்குள்ளே உள்ள போயிட்டான் ஆனா நம்ம ஒரு யூபி மாஃபியாக்குள்ள போக முடியல பர்றாடி एक काम करूं लेट्स एटलीस्ट स्टार्ट गैदरिंग इंटेल और कल को यूपी में ऐसा कोई पॉलिटिशियन पावर में आता है जिसे वाकई में हमारे देश की फिक्र हो तो ये सारे सबूत काम आ सकते हैं पता करो मिनिस्ट्री में किन लोगों ने इनकी मदद करी है हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है ஏண்டா அவனுங்களா அந்த பிஸ்னஸ் மேனா வாங்க பாரு எவ்வளோ அடிச்சு வச்சுக்கிறாங்க भाई खुशामदीद 2007 டைம்ல ஆரஞ்சு கலர் நோட்டு இருந்துச்சு ஆமாடா 1000 ரூபாய் 1000 ரூபா 500 ரூபா 1000 ரூபா இது 1000 ரூபா 1000 ரூபாய் Pink ல கொஞ்சம் இருக்கிறது லைட்டாக 1000 தான் ரூபா. இருக்கும் இது என்னது இது அப்பா, ஒருவேளை அவ்வளோ மத்த எல்லா கரன்சியும் அடிக்கிறாங்க போலடா ஒரு 20 ரூபாய் 100 ரூபாயிலேருந்து அடிக்கிறாங்க 20 ரூபாய் கொஞ்சம் ஆரஞ்சு ரெட்டிஷ் இல்லடா இது 500 500 1000 வந்து இந்தியன் கரன்சி போலதோ இது வந்து இந்தியன் கரன்சி போல மிச்ச கண்ட்ரியோட கரன்சியும் சேர்த்து அடிக்கிறாங்க போல अब्दुल बटावी आजम चीमा உன்னோட எக்கனாமியே அடி வாங்குவாங்க के में मुजाहिदों का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप है இந்த மூளை அவனுங்க கண்ட்ரிக்கு போட்டுருந்தாருன்னா என்னது நல்லா டெவலப் பண்ணி ये मेजर इकबाल के साथ काम करता है ரஷ்யன் மாதிரி தான் और आप हैं என்ன சேஜா அசாசின் கிட்ட ஒரு சேஜா के बेताज बादशाह ऐसे एक सियासी ताज पहनाने की देरी है इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता इनकी रहमत से ही हम इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर जावेद भाई रहमत तो खुदा करता है हम तो बस उनके दिए हुए हुक्म की तामील कर रहे हैं அங்க போயிட்டான் रहमान भाई हमें भारी तादाद में आपसे असला बारूद चाहिए मगर जाली नहीं ऐसी बंदूकें जिस पे रूसी अमरीकियों का नाम छिदा हो हमारा नाम कल को अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो आईएसआई का नाम नहीं आना चाहिए அமெரிக்கா இவங்க பேக் பண்ணுதுல சோ மேட் இன் ரஷ்யா डुप्लीकेट बंदूकें ஏதோ சொல்லல ரஷ்யா இந்தியா बलूचिस्तान में मकबूल पकड़ ஆமாம் ஆமாம் கார்கில் வாரில் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது ரஷ்யா தானே खलीफों ने आपको शेर बलोच के खिताब से नवाजा है आपके कहे को कभी इनकार नहीं कर पाएंगे ये सारा सामान आप उनसे खरीद लीजिए हम कीमत से बहुत ज्यादा देंगे तो ये काम आप खुद भी तो कर सकते थे हैं? बलोच आजाद मुल्क के लिए हम ही से लड़ रहे हैं वो हमें उनकी बंदूकें क्यों देंगे इंटरोगेशन के नाम पे इन्होंने उनके 70 रिश्तेदारों को भी तो मरवा दिया मैं अपनी कौम को धोखा नहीं दूंगा ठीक है माजरत चाहता हूँ लेकिन ये बंदूकों का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है ये जाने बगैर हमारा ये सौदा करना मुश्किल होगा भट्टोवी साहब धंधा भरोसे पे चलता है भरोसा देने में कोई हर्ज नहीं अगले महीने के पहले जुमे 3 अक्टूबर 10-12 मुजाहिद इंडिया जा रहे हैं इस बार थोड़ा बड़ा मकसद है उनकी रुखसती कराची से ही होगी तो जुमेरात के पहले तक सारा माल खैरियत से हमारे पास पहुंच जाना चाहिए मैं खुद जरवारी साहब से आपकी हिमायत करूंगा அவன் யாரா अरे वाह इलेक्शन मुबारक हो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि इनका कहा जरवारी साहब कभी टाल नहीं पाएंगे ये सारा माल आप लोगों को अगले महीने की जुमेरात तक मिल जाएगा इंशाल्लाह रकम डॉलरों में होगी और जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना आप तो जानते ही होंगे रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है மேஜருக்கு ம் சுந்தரபாண்டி ம் படத்தில் ஒரு சீன் வரும் பத்தியா ஊரில் நீங்கள் எப்படியோ எங்கள் ஊரில் அதை விட நாங்கள் தெரியலனா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க लियारी छीनना चाहता है आपसे रहमान ने अगर अपने पर फैला लिया तो आपकी कुर्सी भी जाएगी और ஹீரோ வச்சா है अगर शैतान को मारना है तो चिराग तो घिसना ही पड़ेगा लगता है कि अब जिन्न को आज़ाद करने का वक्त आ गया है
வா வா நிறைய இடத்துல க்ரீன் ஸ்க்ரீன் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. சிஜி ஃபுல் நல்லா க்ளீனாக இருக்கு. இவர் சஞ்சய் அஜய் தத்தா. ஃபுல்லு சிஜி. இவர் தான் அவன் அதுக்கும் மேலே ஒரு ஆளுகிறானே அவன் தான் அது. தெரியலையே. அது எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா சிஜி வந்து நிறைய இடத்துல மூமெண்ட்ஸ் நிறைய இல்லாத இடத்துல சிஜி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் சிஜி தான் எல்லாம். அதான் ஏன்னா அந்த கிளம்ஸினஸ் இருக்கும்ல மூமெண்ட்ல. தெரியலடா சிஜியா இல்ல பெரிய இது பேக்ரவுண்ட் ஸ்கிரீனா தெரியல இல்ல. बड़ा साहब ने मुझे भेजा है कैश कहाँ के हो? नोश की। अरे वाह बलूचिस्तान। हाँ तुम तीनों? अरे फिर तो तुम हमारे भाई निकले। आओ तुम्हें बढ़िया चरस पिलाता हूँ। मुफीद मुफीद ஓ இவர் தானே அந்த டெவில் விச்சுக்கும் சின்ன रुक रुक मैं आ रहा हूँ वापस आ रहा हूँ। हाँ? போலீஸ் அது. अबे एक बोरे कहाँ तक भाग लेगा? ஸ்கோப் போட்டு சொல்றதா இந்த ஷாட். யாரும் ஓடியும் போக முடியாது, யாரும் வந்து காப்பாற்ற முடியாது. मुझे क्या लगता है कि बड़े साहब क्या लगा मुफीद के साथ मिलकर बड़े साहब के माल में से खतने भर की चोरी कर लोगे और लंड उठाकर निकल लोगे? யாரா முஃபீத்? कोकेन में खुशबू नहीं होती लाले। माई वो चिट्टे के पैकेट में टैल्कम पाउडर कौन डालता है? हैं? अगर सरदर्द की गोली का चूरा भी डाल देता ना तो शायद बच जाता। पुलिस के दिनों में मेरा एक पार्टनर बहुत अजीज था, भाई से भी बढ़ के प्यार करता था मैं उसे। फिर मुझे पता चला कि मेरी ही पीठ पीछे मेरी होने वाली बीवी को फिर क्या था, एक ऑपरेशन में बंदूक की नली उसकी तरफ घुमा दी, आते निकालकर अपनी बदजात मंगेतर के दहलीज पर टांग दिया। हमेशा बोलता हूँ बड़े साहब को, मगरमच्छ पे भरोसा कर सकते हैं मगर पे नहीं। ஏதோ இதெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு தோணுச்சு. கேட்டு जमीन साहब अभी अभी 3 सुअर देखे, एक और को देखने की तमन्ना थी, इतने में आपका फोन आ गया। बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ? अरे सुअर छोड़, ये बता कहाँ है तू? ये गलत है रहमान भाई, अपनों से ही गद्दारी कर रहे हैं आप। किनके साथ हाथ मिला रहे हैं आप? इन माताओं के साथ जिनके खिलाफ रोज हमारे भाई आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जाने जा रही है, रोज बच्चे कट रहे हैं, औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, ये हमारी कौम खत्म करने पर तुले आप इन्हीं के साथ। ஐஎஸ்ஐக்கு உங்களுக்கு பிடிக்காது பட் ये कौम का ड्रामा मुझे मत दिखा साले। இது மட்டும் வேணும் போட்டு 4 गोली खाई है मैंने अपनी कौम के लिए, बच्चा खा लिया कौम ने मेरा, बदले में थोड़ा वापस ले लिया। तो कौन सा तेरी अम्मी छीने तुझसे साले? मुझे सिखाएगा मादर, मुझे सिखाएगा मादर। अब अंदर चल भाई, बच्चा है, रहने दो भाई, बच्चा है तू यहाँ से जा, दिमाग खराब हो गया तेरा, मैं खाना बातें कर रहा है। ஓரளவு தான் जा तू निकल, ரொம்ப கிளாஸ் निकल यहाँ से भाई, अब अंदर चल। जा मैं कह रहा हूँ ना, घर जा अपने। ஒரு இது ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொடுக்குன்னு சொல்லிடுது. बोट से ही जा रहे होंगे ஓ गुजरात, இந்த ஹோட்டலா? गुजरात में जाना होगा। இங்க பஞ்சாப் இருக்கு, அதான் ஆமா ஆமா ஆமா. இங்க நம்மளோட குஜராத் இருக்கு. विक्टर 1 का मैसेज आया, तुझे भी आया? सुबह से 3 बार वही सेम 3 अक्टूबर कराची पोर्ट वाला मैसेज आया।
टेंगो 9 से भी आया है, लेकिन उसका लोकेशन पोरबंदर बताया है। वही सेम 10 से 12 हेवीली आर्म्ड टेररिस्ट। गाइस मुझे भी, मगर लोकेशन जामनगर की है, बट सेम डिस्क्रिप्शन। इतने लोकेशंस एक साथ ट्रैक करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। बंसल सर को बताएं। ऐसा करते हैं, नेवल इंटेलिजेंस और गुजरात एटीएस को खबर देते हैं। दे विल हैंडल इट फ्रॉम देयर। இல்லை ஹிட்மேன் மிஷனில் வர மாதிரி லொக்கேஷன். ஸ்டெப்பு போட்டுன்னு வருவார்ல ரீல்ஸ்ல. இதனாலுமே படம் ஓடிட்டு இருக்கும்போது பீக் ஆனது இந்த இது இன்னொன்று கூட பார்த்தேன் அந்த இடத்துல ஒரு டான்ஸ் இதுவே இல்லை, நானும் ஆட்டுமான்னு கேட்டு ஆடினாலும். ஆமா சீக்வென்ஸ் பிளான்ட் சீக்வென்ஸ் இல்ல. உன் கல்யாணத்துல இதே மாதிரி ஆடுறாங்க. நீ எனக்கு பஸ்து அரபிக் கத்துக்கணும். அதுதான் பாடம். பஸ் ஏலே ஏலே இப்போ ஒரு பலோச் சைடு சேர்ந்து பாகிஸ்தான் கராச்சி அட்டாக் பண்ண போறாங்க. शिरानी साहब, शहबाज और 100 बलूच बच्चों का मेडिकल कोचिंग में इंतजाम करा दिया है भाई ने, और वो भी कराची में। रहना खाना सारी हमारी जिम्मेदारी है। आपने सिर्फ सफर की तारीख तस्दीक करनी है। नाना को बहुत उम्मीद है तुमसे बेटा, बहुत खून बहा रहे हैं ना बलोच। अपनी आज़ादी के लिए थोड़ी सी आई बहा के देख लो, क्या पता तुम बलूचिस्तान को आज़ादी दिला सको। हाँ, हमारी तरफ से छोटा सा नजराना खास आपके लिए। मेरे ये छोटे से सामान की लिस्ट है, अगर अगले महीने की जुमेरात से पहले मुकम्मल हो जाए तो हो जाएगा। सुना है वो लेहरी के इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। सगा और सियासत एक ही जुमले में नहीं आते असलम मियाँ। रहमान किसी का नहीं है। इस मुल्क में ना किसी को सही हुनर की कदर ही नहीं है। सस्पेंड भी आप ही ने कराया था मुझे। मैंने नहीं हो ही नहीं सकता ना सच्ची। मैं खैर इतनी पुरानी बात अब तो वैसे कुछ याद नहीं है। ये है तुम्हारा रीजॉइनिंग लेटर। जाके संभाल मेरी लियारी। आप मेरा शेर पुत्र शाबाश। அக்ஷய் கான பொறுத்தல் இது ரெடி பண்றாரா? चुक। ஏன்னா அவர் வந்து பாலிடிக்ஸ் मेरे पास वापस आए। लेकिन ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। जो गंदगी आप मुझे साफ करने को कह रहे हैं ना, मूड से डर लगा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। वालतू टटुकड़ो फाल लियारी की पुलिस का एक बंदा रहमान डकैत के फेहरिस्त अदाई पे होगा। अव्वल इनकाउंटर से पहले मेरा जनाजा उठ चुका होगा वहां से। अरे तो फिर हल क्या है मेरे भाई? लियारी टास्क फोर्स, इसमें सिर्फ मेरे लड़के होंगे, जिसके बारे में बाहर वालों को कभी पता ना चले। और एक अहम बात, मेरे तौर तरीकों में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, आप भी नहीं। तभी ऑपरेशन डी सिर्फ तब मैं लियारी की जिम्मेदारी उठाऊंगा, वरना मेरा घर तो बड़े साहब की दुआ से चल ही रहा है।
चल फिर एसपी 12 तारीख को टाइम पे ज्वाइन कर ली नाक ना कटाई मेरी है ஒரு பெட்ரோல் காசு வாங்கிக்கலாம். 10 ரோசா என்ன வேலைக்கு அமுச்சு விட்டா என்ன பண்ணுறது? கோச்சிங் கிளாஸ். இவரு அவர் வந்து அங்க ஒரு லைஃபை பில்ட் பண்றாரு அவரு. என்னடா அஜித் சிங் கடைசி பாட்டா? ஏன் அவர் பாட மாட்டேன்ட்டாரு. அது அமெரிக்கான் வீட்டுல போய் கன்வின்ஸ் பண்ணுகிறாரு அவரு. நோத்து வச்சிருவோம்ல இதை. இன்னும் 2007 தான் நடக்குது எல்லாமே. எல்லாம் வந்து இயர்லியே தான் நடக்குது. ஸ்பை அங்கேயே வாழ்ந்துருவாங்களா ஃபுல் லைஃபையும்? கமிட்மெண்ட் டு தி மிஷன். விக்ரம் போய் அமலா பாலிட்டு கேட்பாரு, உன்னை எப்படி வளர்க்க சொன்னா எப்படி வளர்த்துருக்கேன்? ஆமா இல்ல அவங்க வீட்டு துரைமுருகன் பாலிட்டிஷியன் தெரியல. ஐயோ வட்டார கிட்ட தோடா தெரியும், ஸ்டாலினோட அண்ணன். அப்படியே இருக்கு. क्या हो गया? तकलीफ क्या है? ये मेडिकल तो बहाना है, बस कैसे ना कैसे घर से निकलना चाहती हूँ। ज्यादा दिन ना रह गई तो पापा किसी बर्गर बच्चे से मेरी शादी करा देंगे। बर्गर बच्चे से नहीं तो और किससे शादी करोगी? எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த பர்கர் கிட்டுன்றது வந்து அந்த பணக்கார பசங்களுக்கு வச்சுக்கிற பேருன்னு நினைக்கிறேன். 2007 டைம்லாம் பர்கர் வந்து அந்த அளவுக்கு கிடையாது, ரொம்ப அது லக்ஸரியஸ் ஃபுட் இல்லை. அப்போ கொடுத்துறாங்களா ஒரு டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் ஆபரேஷன் डी வந்து. अच्छा एसपी चौधरी असलम, अरे यार ये जरवारी साहब को ना कब्रों में से गड़े मुर्दे उठा कनु पूछता तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा. बच्चा यार तू मेरा. अरे बेटी ईद मुबारक. मैं करेक्टाना पॉलिटिशियन वाला होता ना बाहर. में फिर से फेल हो गया, लगता है आपको भी मिनिस्टर बनना है मेरी तरह. ना ठीक हुआ है. खाने में क्या गया भाई? तेरी मोहब्बत में जलना. லைட்டா அந்த இந்த படம் அந்த பத்மாவதில லுக் விடாம அந்த மாதிரி ஏரியாக்குள்ள சுத்துறாரு. அது आलम भाई यानी अंदर बैठ जाएंगे आलम भाई. अरे यहाँ बैठो, अपन एप्पल फ्रेश है नहीं है, वाटरमेलन लेके आता हैं. ये आदमी तो अबू से मिलने आता रहता है घर। यो एसपी असलम। नाइस इंटेल और इंटेल दोबारा घर आए तो नजर रखना इस पे. आपको खतरा है इस आदमी से? हमारे एक मंत्री और उसके बेटे के साथ कुछ मीटिंग्स करके एक इसमें ये फैसला लिया गया था कि अब से इंडिया भी अपनी करेंसी नोट्स का रॉ मटेरियल उसी ब्रिटिश कंपनी से बनवाना शुरू करेगा जिससे पाकिस्तान बनवाता है. हमारी फेक करेंसी का जितना भी रॉ मटेरियल है वो इसी कंपनी से पाकिस्तान जाता है. दैट्स व्हाई द क्वालिटी इज एज गुड एज रियल. पर उनको प्लेट्स कहाँ से मिली? जनवरी 2007 में MG 2005 नोटों की सीरीज में कुछ डिज़ाइन चेंजेस लाए गए थे जिसके लिए फिर से लेज़ारस से नई प्लेट्स बनवाई गई थी. हमारे मंत्री और उसके बेटे ने लंदन से उन प्लेट्स की डिलीवरी रिसीव करी और वापसी में अपने प्राइवेट जेट में टेक्निकल खराबी का बहाना बनाकर दुबई में कुछ घंटों के लिए हॉल्ट ले लिया. हमारा मानना है कि इन्हीं चंद घंटों में वो दोबारा जावेद खनानी और मेजर इकबाल से मिले और वहीं दुबई के होटल में उन प्लेट्स की रेप्लिकास दे दी. हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे सर. ये केस हम बाहर भी ले आए ना तो ये मिनिस्टर्स
पॉलिटिकल वेंडेटा का झूठा इल्जाम लगा के हमें ब्लैकलिस्ट करवा देंगे। बट सर हम चुप भी तो नहीं बैठ सकते ना। बंसल, किस्मत की सबसे खूबसूरत आदत पता है क्या है? वो वक्त आने पे बदलती है। हमारा भी वक्त आएगा। गाड़ी चालू कर भाई, सामान लेके खनाली के लिए निकलो। इसकी तबीयत खराब हो गई, अचानक हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। भाई हम भी चलते हैं ना। अरे निकलना है यार डोंगा। और सुन, हिसाब बराबर देख, हरामी किसी के सगे नहीं है। जी चल चलना रे। सारे के सारे गिरटू मुझे बद पेस्ट लिया रे। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो अंदर, गाड़ी निकालो। सारा सामान लोड हो गया कि नहीं? हाँ पुलिस टास्क फोर्स हो गई। இந்த வண்டியில வேகமா ஸ்பீட் பிரேக்ல ஏத்துனாலே ஜம்ப் ஆயிடுது। क्या हो गया? सब ठीक है? ஐசுசு அதான் நினைக்கிறேன்। அது முன்னாலே பெருசா போட்டிருப்பாங்களா சிம்பிளா? இல்ல எந்த கார் பிராண்டுமே வரலடா இது வரைக்கும். அங்க இதுவே பிளட் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. எதுவுமே இல்லையா? அவ கார் ஒயிட் கலர் கார் வந்துச்சு, அதுலயுமே தெரியல ஜாகுவார்னு நினைக்கிறது. மேபி நம்ம இங்க இருக்கிற மாடல்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு இருந்திருக்காது போல, இல்ல அவங்களுக்கு இருந்த மாடல்ஸ் டைமிங்க்கு நம்மளுக்கு கிட்ட அவைலபிள் இருந்திருக்கு। சேஃப் தான்। जुमेरात का वादा किया था। वालेकुम अस्सलाम। शिवा साहब सब खैरियत? सब खैरियत। और भाई कमाल कर दिया रहमान ने। आई नहीं? वो किसी काम में मसरूफ थे इसलिए आ नहीं पाए। दुआ भेजिए। तुम्हारा पॉइंट करेंगे उनका आईएसपी कुछ तो कर दे। போலீஸ் தானே இருந்தாங்க எதிரில் பிளாக் பண்ணி வச்சு போலீஸ் இருந்தாங்க. रमजा पक्का आप नहीं लेंगे? नहीं जावेद भाई, अब बस निकलेंगे। लड़की गाड़ी में सामान भर दें। लड़की में नहीं, पीछे की सीट पे रखना। बस 2 मिनट। नाराए तकबीर। तो जी लड़के तैयार हैं? कल निकल रहे हैं? नहीं। गंगा सही, तुम लोग निकलो। लेकिन भाई आप उजैर को बोलो जमीन को इत्तला करे। लेकिन खान भाई एसपी है वो। अगर तुम लोग गाड़ी में रहे तो बच्चा बचेगा नहीं। जुम्मे के दिन की रवानगी थी ना? हाँ, जुम्मे की रवानगी थी। पता चला किसी ने हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस को पहले से ही हमारे आने की खबर पहुंचा दी थी। இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு ப்ரோ தெரியும். वो तैयार थे हमारे। ஏன்னா அவங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் சர்வீஸ் தான்। नाले जहन्नुम की एक टिकट काटू या बीवी बच्चे को भी साथ ले जाएगा। जैसे ही मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाना, ठीक है? रहमान ये लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। இப்போ அதே மாதிரி தான் ஃபெஸ்டிவல் எக்ஸ்பிரஷன் செம்ம இருக்கு. खैर, जब तक बड़े साहब नहीं बोलते ये प्लान होल्ड पे है। யார் அது வந்து பாபா சைடு யாராவது காட்டு சொன்னாங்களா இல்லை காட்டினாங்களா திரும்பி? இவரும் சொன்னார்ல, இது அவர் தான் மெயின் போலுது. मजे की बात तो ये है खबरी का पता चल गया। மிஷனா உண்மையில ஹோல்ட் பண்றான்டா. अरे साजिद, அது टैक्स कर रहा है तू?
हाँ अरे हिंदुस्तानी मुखबिर है, बड़े हार्ड मास होते हैं ये साले। पट्टे से मारेगा तो लौंडा गरम होके अब तुझे अपनी यार स्टार्टिंग अंदर हो रहा है तू रुक मैं दिखाता हूँ। ஒரு பெட்டி ஆகுது लेकिन आज का बिस्मिल्लाह इसके साथ बोल कितने काफिर एजेंट्स आए तेरे साथ, कहाँ डिप्लॉयड है? कराची, रावलपिंडी, बोल बेटा। अरे मैं तुझे नहीं मारना चाहता, बस मुझे बता दे कहाँ है ये एजेंट, कितने आए, मेरे मुल्क में घुसे हो तुम, बताओ बताओ। प्यार नहीं समझते साले, बोल कहाँ डिप्लॉयड है, बोल बोल हाँ डोंगे, सब खैरियत है अस्पताल में? भाई वो रहमान भाई को माइकलोची पुल से पकड़ के ले गए। कौन पकड़ के ले गया बहन? अरे वो सालम एसपी चौधरी असलम। एसपी रहमान भाई कह रहे थे आप जल्द से जल्द जमील भाई को इत्तला करो। பண்ண சொன்னதே அவன் தான்டா अरे भी उज़ैर, क्या बात है बच्चे, आज हमें कैसे याद कर लिया? जमील भाई मेरी बात सुने। अरे तू फिक्र मत कर बच्चे, तेरा जमील मामू बैठा है अभी, मैं करता हूँ कुछ। जल्दी जल्दी कुछ करे। வெற்றி என்ன மேட்ச்? अम्मा ये मिसबा कैच ड्रॉप कर देता है यार, पैर लगे हुए हैं मेरे। जमील भाई सब संभाल लेगा, लड़के इकट्ठा करने पड़ेंगे। घर चलना होगा इसी वक्त। उज़ैर घर चल। क्यों 12 साल इंतजार किया तेरे खून के चीटे अपने कमीज पर देखने के लिए। रहमान डकैत का खून है एसपी साहब, तमीज से बहाना। बारह साले को अखलाक जारी किए, जितने भी लोग हैं उनको काम पे लगाओ। अखलाक अखलाक। जी भाईजान। पागल हो गए क्या? क्या मिलाया था बच्चे के खाने में? ऐसे कैसे इल्जाम लगा रहे हो? 40 साल से बोल अखलाक, मुझे कुछ नहीं पता। बोल अखलाक, मारा जाएगा आज तू मेरे हाथों। भाभी के साथ कौन है अस्पताल में? पता नहीं भाई, किसी को भेजो अस्पताल। कहाँ ले जा रहे रहमान भाई को? नहीं पता। इधर आओ। ना एनकाउंटरा आखिरी मौका दे रहा हूँ अखलाक, बोल दे वरना तेरे कुत्ते का। क्या कर रहा है ये? रुक। कौन था? हमजा तेरा दिमाग खराब हो गया? मुझे नहीं पता। नहीं पता? मुझे नहीं पता। என்னடா டக்கேட்டோட பையன் அஷத் பாபு ரஹ்மான் பலுச்சி ஒருத்தனை கொன்னான், மண்டே வச்சு அவங்க அப்பாவை அடிச்சு கொன்னான், அவனோட பையன் அவன் ஆளுக்கு கொன்னி मेरे भाई की मुखबरी करेगा तू? हाँ? मेरे भाई की मुखबरी करेगा? ஃபுட்டில் வச்சு அவரு டெசர்ட் இருக்கான் எஸ்பி அவனோட தம்பி அவனோட ஸ்டெப் பிரதரா रहमान से फोन कर रही हूँ मैं, कहाँ हो? यालीना, मैं किसी से बुरी काम में फंसा हूँ। अरे मेरी जान, जरा फोन तो चेक करो, तोहफा भेजा है तुम्हारे लिए। ஒரு வீட்டுக்கு வந்து नजर ப்ளீஸ் रखो, एसपी पर नजर रखो, अब्बू एसपी एसपी अब्बू। ऐसी कातिलाना नजर रखी है ना कि तुम तो अभी की अभी आके मुझे किस कर दोगे। பார்த்துட்டு என் செல்லா குட்டி அருமையா பண்ணிக்கிறேடி। यालीना तुम कहाँ हो इस वक्त? सच में आ रहे हो? डॉल्फिन मॉल। मैं मजाक नहीं कर रहा यालीना, मॉल छोड़ो, मेरे घर जाओ, अपना फोन ऑफ रखो और जब तक मैं वहां पहुंचू वहां से हिलना नहीं। हमजा यालीना घर जाओ।
रहमान का सर चाहिए, फिर लियारी चाहिए। மெயினா இல்ல ஸ்டெப் பிரதர். ஓ அர்ஷத் பாப்பா ஓ இவ்வளோ எங்கே தான் இருக்கானா வந்து ஏதாவது பிளான் போட்டுக்கிறாங்க போல. அஷ்ரத் பப்பு ஓகே मुझे पहले रहमान का सर चाहिए, फिर लियारी चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, और रहमान को उसके घर से अकेले निकलवाने की जिम्मेवारी मेरी। जा दी तुझे लियारी पैदा ऐश कर। एसपी तो आगे संभाल लेगा ना? செத்துட்டான்டா. ஓ அந்த தொகுதி. ஐயோ ஐயோ जमील साहब, मैं हमजा अली मजारी। 1 घंटे में रहमान भाई शेरशाह पुल पर मिलने चाहिए जिंदा, वरना आज रात ये वीडियो सारे टीवी चैनल्स की सुर्खियां बना दूंगा। अगला कदम बहुत सोच समझ कर लेना जमील साहब। क्या है ना, अब आपकी बेटी की जिंदगी भी मेरे हाथ में है। ना राइट अच्छा वीडियो दर्द संभाल लेगा लाले। कोशिश करता हूँ लाले। இப்போ வேற பேர் இது பண்ணிருக்காங்க. இல்ல அதேதான் ஸ்வைன் ஜமா. साले का सर खुलने वाला था क्या? அந்த ஸ்வைன் அவங்கள रहमान को मत मारना भाई। मतलब अरे अपना फोन चेक कर। मुझे पहले रहमान का सर चाहिए, फिर लियारी चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। ये कहाँ से आया? वो सब छोड़, अगर ये वीडियो बाहर आ गया ना तो मेरा करियर भी बर्बाद हो जाएगा और मेरी बेटी भी काम से जाएगी। आपकी आवाज नहीं आ रही। யூ யூ गाड़ी का पता चला? इतना मुश्किल होता है किसी गाड़ी के बारे में पता लगाना? हम तो एसपी नहीं मान रहा, और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। ये एसपी का पता चाहिए किसी भी हाल में। लियारी टास्क फोर्स का ऑफिस का है, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। अरे बेबी कहाँ रहे हो? ये स्कूल बंद हो गए और बिना इजाजत क्या नया मना है, चले जाओ यहाँ से। मेरा भाई को उठाने की जरूरत थी साले। मारो सालों को। இதுக்கு இது பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா எல்லாரும் இவரோட டீம்ல ஹேண்ட் பிக்டு. ஓ எல்லாரும் கட்டிட்டு போ யார் பாரு கேமராமேன் ஃபோனில் ரொட்டேட் பண்ணி எடுத்துச்சு. இன்ஃப்ளூயன்சராக இருப்பான் போல இன்ஃப்ளூயன்சராக இருப்பான். किसी को नहीं छोड़ना, सब के सब यहीं लगते रहेंगे। साले मेरे भाई को उठाने की जरूरत की भड़वे एसपी असलम ने। जोर से मार सालों को, उसको पता चलना चाहिए क्या हश्र होता है। एसपी चौधरी असलम, लियारी टास्क फोर्स से आग उठेगी और पूरा कराची खाक कर देगी। आपके 40 अफसरों की कब्र को कोई मिट्टी देने वाला तक नहीं मिलेगा। अगले आधे घंटे में मुझे रहमान भाई शेरशाह पुल पर चाहिए, सही सलामत। खुदा हाफिज। இப்போ கேட்டுதானே ஆகணும். இப்போ என்ன பண்ணுவ? இப்போ என்ன பண்ணுவ? இப்போ போயிட்டு பசுபதி மாதிரி ஷூட்டில் வச்சு தலைவர் பாய். तुम में से हमजा कौन है? வீடியோவில் பார்க்கலையா அவரு? इधर आओ।
चिंगारी लगाकर तुझे ये लगा तूने आग पर काबू पा लिया है। ये गलत फहमी मत पाल। यहाँ बारूद का ढेर बैठा है तुझ जैसों को राख करने के लिए।